بیک۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو 2 دن کے اندر شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کا تحریری حکم جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے علاج کے لیے خصوصی میڈیکل بورڈ تشکیل دینے، بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق معلومات کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہ کرنے اور اسپتال میں قیام کے دوران کسی عوامی اجتماع کی اجازت نہ دینے کا حکم بھی دیا ہے۔ عبدالقیوم صدیقی کی رپورٹ دیکھیے۔ جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 7 صفحات پر مشتمل تحریری حکم جاری کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کو طبی معائنے اور علاج کے لیے 2 روز میں شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے بانی کی شفا اسپتال منتقلی کے عدالتی فیصلے پر اعتراض کیا۔ عدالت نے بانی کا مکمل طبی ریکارڈ، ٹیسٹ رپورٹ، نسخوں اور ڈاکٹروں کی آراء عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ بانی کی گزشتہ 3 ماہ کے دوران اہل خانہ اور وکلاء سے ملاقاتوں کی مکمل تفصیلات عدالت میں داخل کی جائیں۔ سپریم کورٹ نے حکومت کی مشاورت سے شفا انٹرنیشنل اسپتال میں بانی کے علاج کے لیے خصوصی میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا بھی حکم دیا ہے، جس میں فزیشین، جنرل سرجن، ماہر امراض قلب اور ماہر امراض چشم شامل ہوں گے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان اور بانی کی بہن عظمی خان کو طبی معائنے اور علاج میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ اسپتال میں علاج اور فراہم کردہ سہولیات کے اخراجات قیدی یا اس کے اہل خانہ برداشت کریں گے۔ اہل خانہ کو ہفتے میں 1 بار ملاقات اور قیدی کو اپنے بیٹوں سے ہفتے میں 2 مرتبہ ٹیلی فون پر بات کرنے کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ اہل خانہ، سیاسی جماعت یا وکلاء بانی کی طبی رپورٹس اور صحت کی صورتحال عوام کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے۔ قیدی کی صحت سے متعلق معلومات کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اسپتال میں قیام کے دوران کسی عوامی اجتماع کی اجازت نہیں ہوگی۔ ان شرائط کی خلاف ورزی پر حکومت سہولیات فوری واپس لے سکے گی۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ قیدی ہونا کسی شخص کو انسانی سلوک اور ضروری طبی سہولیات کے حق سے محروم نہیں کرتا، اور ریاست و عدالت کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ زیر حراست شخص کی زندگی، صحت، وقار اور سلامتی کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ سپریم کورٹ نے تمام متعلقہ مقدمات کو باہم منسلک قرار دیتے ہوئے اکٹھا نمٹانے کا فیصلہ کیا اور سماعت 16 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ ساتھی رپورٹر عرفہ فیروز کے ساتھ نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کا علاج شفا اسپتال سے کرانے کا عدالتی حکم کے خلاف اپیل میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاجر نے کہا کہ جیلوں میں صحت کے مسائل کے شکار بہت سے قیدی ہیں۔ سزا یافتہ قیدیوں کا علاج سرکاری اسپتالوں میں کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کا حکم تمام قیدیوں کے لیے ہوگا؟ قانون کا جائزہ لینے کے بعد اتھارٹیز کا یہ خیال ہے کہ یہ آرڈر جو ہے یہ قانون کے ان 4 والز کے اندر نہیں ہے جو کہ کسی بھی سزا یافتہ شخص کو جو سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں جیل میں لاگو قوانین کے تحت، تو اس حوالے سے ان کی یہ تجویز تھی کہ نظر ثانی کے ذریعے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں اور اس آرڈر کی مناسب ماڈیفیکیشن کی درخواست کی جائے تاکہ کسی ٹرشری کیئر سرکاری ہاسپٹل میں ان کا معائنہ کرایا جائے، البتہ کورٹ کے احکامات کے مطابق اور جیسے کورٹ مناسب سمجھے۔ جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں ان کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ شفا انٹرنیشنل سے ہیں یا کسی اور بڑے ادارے سے ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کے میڈیکل چیک اپس جو ہیں ان کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے جایا جاتا ہے تو جو پاکستان بھر کی جیل پاپولیشن ہے، ہزاروں قیدی جو ہیں ان کی کمپلیکیشنز بھی ہیں، ان کی بیماریاں بھی ہیں۔ قانون یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ پہلے ایک بورڈ ہوگا، بورڈ یہ فیصلہ کرے گا کہ آیا جیل کے اندر علاج ہونا ہے یا جیل کے باہر ہونا ہے۔ جیل کے باہر اگر لے جانا ہے تو ہر صورت میں سرکاری ہاسپٹلز میں ہی یہ سہولیات میسر ہوتی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوشائند قرار دیا۔ کہا کہ وقت نے ثابت کر دیا سیاسی ہتھ کنڈوں سے کسی کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت کے حکم پر عمل درآمد ہوگا تو آگے بات بنے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق رپورٹس کو ذاتی معاملات کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ الحمدللہ اچھا فیصلہ آیا ہے، یہ فیصلہ پہلے آنا چاہیے تھا، اور ابھی مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا، اور میں بھی یقین دہانی کراتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے اس پہ ہم عمل کریں گے۔ میں سارے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، سپورٹر، پارٹی والے لوگوں کو اپیل کرتا ہوں کہ وہ کسی صورت گیدرنگ نہ کرے،
ताकि खान साहब के हॉस्पिटल में शिफ्ट होने में और उसके इलाज मुआलजे में और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करने में किसी किस्म का एक्सक्यूज़ किसी को ना मिले। हमने पहले भी कहा है कि खान साहब की सेहत पे कभी सियासत नहीं करेंगे। खान साहब की सेहत से रिलेटेड रिपोर्टों को किसी पर्सनल मामलात के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। वक्त ने साबित कर दिया कि किसी को सियासी तौर पर आप ऐसे हथकंडे करके माइनस नहीं कर सकते, और हम भी किसी को माइनस करने के हक में नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सियासत रहेगी तो वो अपनी अपनी, लेकिन मुल्क और जमहूरियत सबकी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि जब तक फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की जोड़ी पिच पर खड़ी है किसी किस्म की साजिश की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि पीटीआई ने मिठाई जल्दी खा ली है। जब तक ये जोड़ी कायम है वजीर आजम और फील्ड मार्शल, यहाँ किसी किस्म की कोई साजिश की गुंजाइश नहीं है और ना ही ये छुरा घोंपने वाले हैं, ये सीधी बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी कोई ऐसी बात नहीं है। असल में पीटीआई ने मिठाई जल्दी खा ली है। आप बता रहे हैं या दुआ कर रहे हैं? मैं बिल्कुल यकीन से कह रहा हूँ, मैं इस सिस्टम के अंदर हूँ। ये मुनाफिक नहीं है, ये दोनों बड़े क्लियर लोग हैं और इनके हदफ बड़े क्लियर हैं। असल में ये सब कुछ ये पीटीआई फ्लोट करती है क्योंकि इनके पास और कुछ है नहीं। तो ये तो खुद कुल्हाड़ी मारी है आपने, इसमें पीटीआई ने क्या किया है? आप खुद कर देते ये काम जो आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है। आपके वजीर कानून कह रहे हैं इस पर भी नजरसानी करवाएंगे। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में सिस्टम इन प्लेस है, अदालतें फोरम इंटैक्ट है। आखिरकार ये उसी जगह पर गए जहां से ये काम होना था और ये एक अच्छा अंदिया है, अच्छी बात है। ये सब अचानक हो गया, ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि कुछ हो रहा है? बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं हो रहा, सिस्टम इन प्लेस है, यही फोरम है। इन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। इस फैसले में बहुत सारे हम समझते हैं लकूनास हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको मजीद बेहतर किया जा सकता है। आपको और पीपल्स पार्टी को पैगाम तो नहीं दिया गया कि नए इंतजामी यूनिट बनने हैं, वरना अगर आज शिफा अस्पताल जाने का फैसला आया है तो कल को बनीगाला जाने का भी फैसला आ सकता है। कोई साजिश, जब तक ये जोड़ी खड़ी है इस पिच पर, इस पे कोई साजिश नहीं होगी। ये खुद इस तरह के लोग हैं जो किसी के कंधों पर बैठ के आना चाहते हैं लेकिन अब कंधे नहीं मिलते। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफी जान ने कहा है कि बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट पर अदालत ने फैसला दिया है। ये आज़ाद अदली और आज़ाद जजेस का इंसाफ पर मबनी फैसला है। हमने अदालत को जो यकीन दहानी कराई है उसका पास रखेंगे। अदालत से मेरिट पर फैसला आया है तो उस पर हुकूमत का क्या एतराज़ है? जिस मेडिकल रिपोर्ट पर फैसला आया उसमें हमारा तो कोई अमल दखल नहीं था। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए शफी जान ने मजीद कहा कि अभी तक 27 सितंबर की एहतजाज की कॉल बरकरार है। अब हमारी क़यादत सर जोड़ कर बैठेगी, इत्तेहादियों से मुशावरत होगी, फिर आगे का लाहे अमल अवाम के सामने रखा जाएगा। जो फैसला आया है ये एक आजाद जजेस का आजाद फैसला है, ये इंसाफ पे मबनी है। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया वो खुशाइंद है, उस पे तहरीक इंसाफ मुतमईन भी है। आपको अभी भी शक्कू शुबात है पार्टी में ऐसे अनासिर मौजूद हैं, बैरून मुल्क आपकी पार्टी के ऐसे अनासिर मौजूद हैं जिन पर आप भी तनकीद करते रहते हैं कि वो भी ऐसा ना करें कि जिसकी वजह से मौका मिले हुकूमत को या फिर अदालत में सवाल उठाने का मौका मिले। हमने यकीन दहानी करवाई अदालत को और हमने जो यकीन दहानी करवाई है उसका हम पास रखेंगे। हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि कोई भी यकीन दहानी हमने कोर्ट को करवाई है उसमें खलल डाले, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है या चाहे पाकिस्तान के बाहर मौजूद है। ये इमरान खान साहब की सेहत का सवाल है। आगाज समझ रहे हैं आप इस बात का कि मुश्किल वक्त गुजर गया, कहीं ना कहीं एक अच्छा आगाज है जहां से अब आसानियां होना शुरू हो जाएंगी पार्टी के लिए? देखिए, हमेशा सोच जो है वो पॉजिटिव रखनी चाहिए। आपके तमाम मुतालबात जो 27 सितंबर के एहतजाज को लेके थे वो तो पूरे हो गए, तो अब वो एहतजाज होगा नहीं होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है इसके साथ साथ एक और हमारी डिमांड थी कि इमरान खान साहब के केसेस सुने जाएं, लगाए जाएं और मेरिट के ऊपर उसके ऊपर फैसला हो। तफसीलात अदालत ने मांग ली है, एहतजाज होगा नहीं होगा? 27 तारीख जो हमारी है वो इंटैक्ट है। हमारी लीडरशिप की इस पे मीटिंग होनी है, अलायंस के साथ हमने बैठना है और आगे का लाएमल हमने अवाम के सामने रखना है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बड़ी खबर करार दिया है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्मिला फारूकी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अस्पताल मुंतकली हो जाए तो बड़ी खबर है। पीपल्स पार्टी रहनुमा नबील गबो ने कहा कि बानी पीटीआई के केस में भी प्लेटलेट्स की कहानी दोहराई जा रही है। एक बड़ी खबर है क्योंकि इतने अरसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अगर मुंतकली वाक़तन हो जाती है तो बड़ी खबर है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है तो हमें मानना पड़ेगा, लेकिन जो मैंने सुना है, जो मेरी रिपोर्ट्स है कि डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट्स बनाई हैं वो वैसी रिपोर्ट्स है जो आज से कुछ साल पहले हमारे एक और बड़े लीडर के लिए बनाए थे जब प्लेटलेट्स कम हो गए थे। प्लेटलेट्स जो है ना, इसकी कहानी जो है ये दोबारा दोहराई जा रही है और ये दोबारा
दोबारा वैसे ही, वो डॉक्टर्स भी वही हैं जिन्होंने पेट बनाया था, रिपोर्ट बनाया था, अभी भी वही डॉक्टर। हो सकता है कि यहाँ पर इलाज के लिए कुछ दिनों के लिए उनको बनीगाला में भी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दे। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो मानना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि तहरीक इंसाफ की अपने कायद के लिए NRO हासिल करने की ख्वाहिश अब नई बुलंदियों को छू रही है। PTI के बेशुमार बानियों में से एक को मुअज़्ज़ज़ अदलिया की जानिब से गैर मामूली रिलीफ मिला। तहरीक इंसाफ का जश्न इस शदीद ख्वाहिश की अक्कासी करता है कि किसी तरह इसके नाअहल कायद को जेल से निकाला जाए। एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI माजी में दूसरे सियासतदानों की जेल में ज़िंदगी मज़ीद सख्त बनाने के मुतालबात किया करते थे। सितम ज़रीफ़ी का शायद इससे बड़ा यू टर्न मुमकिन नहीं कि जिस शख्स को एक नाकाबिल शिकस्त और ख़ुद साख्ता मर्द आहन के तौर पर पेश किया गया, आज उसी की पूरी जमात उसे जेल से अस्पताल मुंतकिल करवाने के लिए फरियाद करती नज़र आ रही है। अदालती फैसले पर खुशियाँ मनाने से पहले PTI को अपने बयानिए के वाज़ेह तज़ादात का जवाब ज़रूर देना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने बानी PTI की सेहत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरिट पर करार दे दिया है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये एक मुतवाज़न फैसला है। ये फैसला न सिर्फ तस्लीम करते हैं बल्कि उस पर अमल दरामद भी होगा। PTI रहनुमा मलिक आमिर डोगर ने PTI कारकुनों से अपील की कि कोई भी कारकुन शिफा इंटरनेशनल अस्पताल का रुख न करे। हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना है। अदालत का फैसला जो है वो बिल्कुल तस्लीम है और उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला अमल भी होगा और ये बड़ा बैलेंस्ड फैसला है। अब जब जिस लेवल पे ये फैसला हुआ है, गुंजाइश नहीं है ना तो जेल अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ के पास, ना इंतज़ामिया के पास कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी भी डायरेक्शन को जो है वो अवॉइड करें। हम पार्टी की तरफ से आपको ये मेक श्योर करते हैं कि हम हस्पताल शिफा इंटरनेशनल में कोई किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी नहीं करेंगे। और आप जाएंगे वहाँ पे या नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। और मैं आपके शो की वसातत से अपने देखने वालों को, PTI के कारकुनों और अहदेदारान को भी ये अपील करूँगा कि ये हमारी कमिटमेंट है सुप्रीम कोर्ट से कि हमने उनके फैसले पे मनो अमल करना है और खान साहब की सेहत के मामले को हमने सियासी नहीं बनाना और अस्पताल की तरफ नहीं जाना, अस्पताल की तरफ कत्तन नहीं जाना, किसी ने भी नहीं जाना।